announce the candidates which had been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dubri, Rakibil Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, Madhav Rajbanshi. Assam Guwahati, Srimati Meera Bartukar Goswami. Assam Dipu Joyram Engling. Assam Karimganj Hafiz Rashid Ahmad Chowdhury. Assam Silchar Surjaya Kant Sarkar. Assam Nagaon Pratyut Bardoli. Assam Kazeringa Srimati Rosalina Turki. Assam Sonitpur Premlal Ganchu. Assam Jorhat Gaurav Gogoi. Then Gujarat Kutch Nishibai Lalan. Gujarat Benskantha Mrs. Jenny Ben Thakur. Gujarat Ahmedabad East Rohan Gupta. Gujarat Ahmedabad West Bharat Makwana. Gujarat Porbandar Lalitbai Vaswai. Gujarat Bardoli East Sithar Chowdhury. Gujarat Valsad Anandbai Patel. Madhya Pradesh Bint Phul Singh Bararia. Tikamgarh Madhya Pradesh Pankaj Agarwal. Madhya Pradesh Satna Siddharth Kushwaha. Madhya Pradesh Siddhi Kamaleshwar Patel. Madhya Pradesh Mandla ST Omkar Singh Markham. Madhya Pradesh Chindwara Nagul Nath. Madhya Pradesh Devas Rajendra Malavya. Madhya Pradesh Dar Radheshyam Mawal. Madhya Pradesh Gargol Porlal Khate. Madhya Pradesh Betul Ramu Thekam. Then Rajasthan Bikaner Govindram Meghwal. Rajasthan Churu Rahul Kaswal. Rajasthan Junchunu Brijendra Ola. Rajasthan Alwar Lalit Yadav. Rajasthan Bharatpur Mrs. Sanjana Jadhav. Rajasthan Tong Savai Madhopur Arshchandra Meena. Jodhpur Rajasthan Karan Singh Uchiada. Rajasthan Jalore Vaibhav Gahlot. Rajasthan Udaipur Tarachand Meena. Rajasthan Chittorgarh Udayalal Anchana. Uttarakhand Tehri Garwal. Jot Singh Gunsola. Uttarakhand Garwal Ganesh Gondial. Uttarakhand Almora Pradeep Tamta. Daman and Diu Kedan Dahiabai Patel. In this list, there are general candidates. Out of these 43 is 10. OBC is 13. Scheduled caste already 10. Scheduled tribe 9. Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list
we are presenting today. Okay, thank you. Sir, let him read in Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा। हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें। धन्यवाद। Okay, thank you. Sir, questions लेना. Will you take questions? Let's take. समिति उनका सदस्य भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ये सवाल रहेगा, ये संकल्प पत्र कब तक तैयार हो जाएगा और कब ये जारी हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनावों के लिए संकल्प पत्र तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति बन गई है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर, असम, MP और राजस्थान के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि खास तौर पर ST, SC और युवाओं को ध्यान में रखकर ये दूसरी सूची और एक नया कार्ड यहां पर कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की है। इन नामों के अंदर 43 नामों की घोषणा की है। KC वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता करी और उसमें 43 नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। असम, MP और राजस्थान के उम्मीदवारों का ऐलान। चूरू से राहुल कसवा को टिकट मिला है। बड़ी खबर, जो पहले से कयास लगाया जा रहा था राहुल कसवा को टिकट मिलना है, मिल चुका है। जालौर से वैभव गहलोत को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कांग्रेस की दूसरी सूची से जुड़ी हुई। 43 उम्मीदवारों का ऐलान, 43 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने की तैयारी दूसरी सूची के माध्यम से। असम, MP और राजस्थान के उम्मीदवारों का ऐलान आज कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कर दिया है। चूरू से राहुल कसवा को टिकट दिया गया है। और जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला है। कांग्रेस की दूसरी सूची। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, दूसरी सूची का इंतजार भी खत्म हो गया। 43 नाम किस तरह से खास, कैसे देखते हैं आप इस सूची को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची उम्मीदवारों की वो जारी की जा चुकी है। 43 नामों की सूची। राजस्थान के भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। राजस्थान से बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल है। इसके अलावा चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह और साथ जालोर से वैभव गहलोत और उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़ से उदयलाल आंजना को टिकट मिला। राजस्थान के भी 25 लोकसभा सीटों में से 10 नामों पर ऐलान हो चुका है। वहीं BJP के 15 लोकसभा सीटों पर ऐलान किया जा चुका है। तो इस तरह से अब दूसरी सूची में 43 नाम सामने आए। राजस्थान के जो नाम है जिन को लेकर कल चर्चा हुई थी, जिन सीटों को लेकर चर्चा के ऊपर आज मोहर लगी है। ये भी है क्योंकि जो बात की जा रही थी राजस्थान से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस तरह के उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों की सूची है वो आज जारी की गई है। तो इस तरह से दूसरी सूची के अंदर 43 उम्मीदवारों के नाम है। और पहले ही कहा जा चुका था कि जो
अगली किस्ती जो पहली किस्ती जारी थी पहले, उसके बाद कहा गया था कि 11 मार्च को जो सीईसी की बैठक हो उसके बाद जिन नामों पर सहमति की जाएगी उनके ऊपर भी चर्चा होगी। जिसमें 45 जो नाम तय किए गए हैं और उसमें जो राजस्थान की 10 सीटें हैं और झुंझुनू हो या फिर चूरू से, जो शुरू में राहुल कसवा जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल है और उनकी महत्वपूर्ण कांग्रेस में आने का जो वजह है वो यही थी कि चूरू से उनको लोकसभा का टिकट कांग्रेस से मिले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी उनकी वो पूरी हो चुकी है। और अब राजस्थान से 43 नाम सामने आया है, जो 43 नाम सामने आए हैं उसमें 10 राजस्थान के भी सामने आए हैं। जी 10 नाम सामने आ गए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? और एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा लोकेश की, SC ST और युवाओं को फोकस रखा गया है इन सीटों में, आगे की क्या कुछ तैयारी, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए आगे को लेकर जल्द एक सीईसी की बैठक होगी जिसमें राजस्थान की 33 सीटों के अलावा अन्य जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर चर्चा है वो की जाएगी। और महत्वपूर्ण रूप से जो कल बैठक हुई थी सीईसी जिसमें सचिन पायलट भी मौजूद रहे, डोटासरा मौजूद रहे, इसके अलावा टीकाराम जोली और प्रभारी सुधीर रहे। बैठक से पहले सभी चारों नेताओं ने अलग से राजस्थान की सभी 25 सीटों को लेकर चर्चा की गई। सीटें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए सीईसी में उनको रखा और प्रस्ताव जो 10 नामों का चारों नेताओं ने रखा उस पर मोहर लगी और उसी में देखना कोई मिला कि जोधपुर से करण सिंह उचियारडा को दिया गया। ठीक है लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल संजना जाटव भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनको सांसद का टिकट मिला है कांग्रेस से। मैडम संजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फिलहाल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं संजना जाटव, जिनको कि उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के अंदर, और एक बड़ी रणनीति के साथ कांग्रेस की तैयारियां भी इसमें साफ देखी जा सकती है। दूसरी सूची जिसका इंतजार था आज वो सामने आ गई है। 10 लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा यहां पर कांग्रेस ने कर दी है। 43 नामों की घोषणा केसी वेणुगोपाल ने करी, प्रेस वार्ता हुई और खास फोकस रखा गया ओबीसी, ST SC और युवाओं को लेकर। ये रणनीति कितनी सफल होगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसी बीच संजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजना जाटव भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फिर से एक बार संपर्क टूट गया है, जुड़ने की कोशिश करेंगे संजना से। और फिलहाल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रण और अपनी अपनी बारी का इंतजार इस समय किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है, इंतजार था वो खत्म हुआ। ST SC और OBC को फोकस में रखकर इस सूची को बनाया गया है। असम, MP और राजस्थान के उम्मीदवारों का ऐलान केसी वेणुगोपाल ने कर दिया है। जालौर सिलोही से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है। जोधपुर से करण सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है और इसी तरह से 10 नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह और उचियरड़ा, जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा, चित्तौड़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। तो 43 कुल नाम है, लेकिन 10 नाम राजस्थान के बड़े नेता और बड़ी उम्मीदें कांग्रेस को इन तमाम नेताओं से हैं, क्योंकि यहां पर मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो आपको बता दें टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को टिकट मिल गया है और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर से संजना जाटव लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संजना जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, टिकट मिल गया है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अपने राहुल जी, सोनिया जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को दोबारा मौका दिया है। पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी संजना जी, टिकट मिल गया है, आगे की क्या तैयारी और प्रतिक्रिया में आपने बता दिया है कि धन्यवाद आपने दे दिया है आलाकमान को, तैयारी किस तरह की है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का होने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो नीति है, जो
मतलब हम इस चुनाव को तरीके से लड़ेंगे। जो कमी रही है अगले चुनाव में, उस कमी को पूरा करेंगे और ये जो चुनाव है जोरदार से प्रदर्शन से करके एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो संजना जी, वो कौन सी कमियां जिसको आप ध्यान में रखने वाली हैं? सर, जो मैंने ये विधानसभा का चुनाव लड़ा है पहली बार, जी। तो इसमें कमी थोड़ी बहुत रही है। उस कमी को देखते हुए अगले जो इस चुनाव में कोई कमी ना हो, मैं पूरी ताकत और पूरी मेहनत लगा दूंगी जी, जान लगा दूंगी। जी। तो आप जब सामने आप मैदान में उतर गई हैं, तो आगे से भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले होंगे। किस तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे, क्या रणनीति आगे रहने वाली है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल सर, हम बैठ के सब बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तरीके से चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से चुनाव लड़ेंगे। आपने विधायक का चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया, अब आप लोकसभा चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि तैयारी किस तरह की है, आप किन चीजों को फोकस में रखने वाली है जिससे जीत सुनिश्चित हो सके? हेलो जी संजना जी, जी मुझे आवाज मिल रही है, जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सारी जिम्मेदारी को अच्छी बखूबी से निभाऊंगी और जो मतलब अपनी जो रणनीति है कार्यकर्ताओं से है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे सब मिलके हम इस चुनाव को ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से जोरदारी से लड़ेंगे। संजना जी, मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है इस चुनाव के अंदर, और खासतौर पर भरतपुर के लिए जहां से आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं? बिल्कुल सर, मेरी क्या जनता जनार्दन ने मुझे पहली बार आशीर्वाद दिया है भरतपुर की ने, और मेरा जितना हो सके मैं पूरी मेहनत और ताकत लगा दूंगी। ठीक है, वो तो आप लगा देंगी, लेकिन मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा इस चुनाव के अंदर? सर, मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि जो जी अपना जो भरतपुर जो सीट है जी, इस पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हाँ। सीएम का यहाँ से वो है, और मैं अपनी जो कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से इस चुनाव को लड़ूंगी। ठीक है संजना जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होता है। आप क्योंकि कांग्रेस से मैदान में उतर रही हैं, आप किसे सबसे बड़ा चेहरा मानती हैं? तो मैं राहुल गांधी जी को मानती हूँ, सोनिया जी को मानती हूँ, प्रियंका जी को मानती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मानती हूँ जी, वो, और अपने पायलट साहब हैं, गहलोत साहब हैं, सभी वरिष्ठ जो नेता हैं उनको जी। और एक सबसे बड़ी जो कठिन डगर जो कांग्रेस के इस समय सामने है, बिखरता हुआ परिवार। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है, वो भी इस समय कमोबेश में है, शंकाओं में है। उसको किस तरह से आप इकट्ठा करेंगी, परिवार को किस तरह से इकट्ठा करेंगी और चुनाव लड़ेंगी, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजी? अपना कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर नहीं है, उल्टी मजबूत है, अपने कार्यकर्ता मजबूत है और मजबूती के साथ ये चुनाव को लड़ेंगे। जी संजना जी, हम लोग बात कर रहे थे एजेंडे की, खासतौर पर भरतपुर को लेकर, क्योंकि प्रदेश में जो अगर सरकार की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े समस्याएं थी, ईआरसीपी की हो, पानी का मुद्दा हो, किसानों के साथ जो समस्याएं थी, उनको सबको सुलझाते हुए यहाँ पर बीजेपी तैयारी आगे लोकसभा चुनाव की कर रही है। ऐसे में एक कठिन डगर कांग्रेस को आप नहीं देखती होगी ये सामने, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना जो मेन है अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पानी की समस्या है, ईआरपी की समस्या है, और वो तो सुलझा दी है बीजेपी ने, उसको तो सुलझा दिया है के लिए है। तो मैं सबसे ज्यादा उनकी आवाज बन के उनको मतलब सबसे ज्यादा न्याय के वो करूंगी, और मेरा वो रहेगा सबसे ज्यादा बहुत सी पार्टी को मजबूत करूँ। ठीक है, एक चंबल नदी का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको आप लगातार उठाती रही, अब किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगी जनता के बीच में, क्या कुछ? बिल्कुल सर, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, मेहनत करूंगी इस चीज में, क्योंकि जनता जनार्दन ने मुझे चुना है, इस चीज के लिए है। ठीक है संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको टिकट मिला है, आगे भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सच बेधड़क की पूरी टीम की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 उम्मीदवार जिनको टिकट मिल चुका है राजस्थान, और दूसरी सूची की घोषणा यहां पर कर दी गई है। 43 नामों को घोषित किया गया, केसी वेणुगोपाल ने 43 नाम घोषित किए। खासतौर पर एसटी, एससी और ओबीसी को ध्यान में रखकर ये पूरी सूची को बनाया गया। तो झुंझुनू से विजेंद्र ओला को टिकट मिल गया है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, और हमारे साथ अलवर से ललित यादव कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, टिकट मिल गया है, तैयारियां कैसी है?
तैयारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। अलवर में एक तरफा माहौल है कांग्रेस का जी। और निश्चित रूप से बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। सारे कार्यकर्ता एक मत होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं। जनता का जो बीजेपी का टिकट होने के बाद जो रेस्पॉन्स मिल रहा था जी, और अब चुनाव टिकट होने के बाद कल से ही जो मैसेज लोगों का, डेफिनेटली बड़े अंतर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। आपने ललित जी बहुत अच्छी बात कही कि एक मत होकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक मत अभी तक कांग्रेस दिखाई नहीं दी। उसको किस तरह से पूरी जी पार्टी एक मत है, हाथ के निशान के साथ है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। ठीक है, तो मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है सर? मुख्य एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, जो नौजवान को रोजगार के लिए वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया, 15 लाख लोग खाते में देने की बात कही, रुपये डॉलर बराबर करने की बात कही, देश की सीमा के ऊपर दूसरे देशों की जो है आतंकवादियों को लाल आंख से नहीं देखने की बात कही। इन सबको लेकर के चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का और बेरोजगारी का है, जो आज चरम पर इस देश के अंदर है। सर, एक बड़ा मुद्दा अलवर के विकास का भी है, एनसीआर से उसको जोड़ने का भी है, औद्योगिकीकरण करने का भी है। उस दिशा में कोई सोच आपकी? हाँ, उस दिशा में हम लोग पहले से प्रयासरत रहे हैं। जो औद्योगिकरण हुआ है अलवर जिले में, उसमें हमारे स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, एनसीआर का फायदा नहीं मिलता, उन सब चीजों पर बात करें। ललित, आप युवा हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, भूपेंद्र यादव आपके सामने हैं, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? क्योंकि सामने वो पार्टी है जो कि इस समय सत्ता में है राजस्थान के अंदर। देखो, अभी अलवर जिले के अंदर 5 एमएलए हमारे लोकसभा क्षेत्र में जीते हैं और पूरा अपन विधानसभा चुनाव की बात से 1.5 लाख वोट हमारे फालतू बीजेपी से आए हैं जी। और अभी जो उसके बाद से जिले के अंदर जो माहौल बना है, निश्चित रूप से पार्टी का वर्कर एक मत है, एक साथ है जी। और काफी दिनों से हम लोग जिले में घूम रहे थे, लोगों से चर्चा करते थे, लोगों का बहुत मजबूती से चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जिताने का मन बनाया हुआ है, क्योंकि 10 साल का शासन लोगों ने देखा है। केवल बातें बातें, भाषण वीरों की भाषण सुने, काम तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए पिछले 10 साल में जो काम नहीं हुआ, जिस निराशा का भाव पूरे जिले में, पूरे प्रदेश और देश में आप लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और जब आज 10 साल पहले गौर जितेंद्र सिंह जी यहाँ एमपी बने थे, तो अलवर जिले में इतने विकास से काम कराए थे जिसका आज भी बीजेपी के लोग भी दबी जुबान कहते हैं, काम तो उस जमाने में बड़ा हुआ था। उन सब बातों को देख करके मजबूत चुनाव है अलवर का और कांग्रेस का तमाम वर्कर और इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुझे टेलीफोन कर कहते हैं कि भाई अब की बार आपका बहुत मजबूत माहौल है कांग्रेस का और हम सब लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। अगर बात करें ललित विधानसभा के चुनाव की, क्या लगता है जनता का मत और प्यार ज्यादा मिलने वाला है लोकसभा चुनाव के अंदर? हाँ, 100% मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लोगों का मन है, मन बना हुआ है। स्वतः ही लोगों, वही लोग जिन लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने बड़े चाव से बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जो सपने हमने देखे थे, जो हमने विचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जाने क्या देश में कर देंगे, क्या जिले में कर देंगे, और काम के नाम पर जीरो रहा। तो वो सब लोग निराश होकर के और सही फैसला वो लोग करने वाले हैं। ठीक है ललित, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है, लोकसभा चुनाव की जब बात होती है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में उनके साथ है, कांग्रेस के साथ क्या है? अब सब लोग समझ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सब बातों को जान गए लोग कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। गरीब व्यक्ति का, नौजवान का काम चलेगा, रोजगार मिलने से उसको रोजगार मिलेगा तो उसका परिवार पलेगा। सारे दिन भाषण सुनने से, हिंदू मुसलमान करने से, शमशान कब्रिस्तान करने से नौजवान का पेट नहीं भरेगा, उसका पेट रोजगार मिलने से भरेगा। तो अब सब लोग समझ गए इन सारी बातों को। अब लोग उस बहकाव में आने वाले नहीं है, अब सब लोग सही निर्णय करने वाले हैं। ललित, विधानसभा चुनाव में भी ये तमाम रणनीति थी, ये तमाम चर्चाएं थी, बातें थी, वादे थे, लेकिन उस समय जो नहीं मिल पाया, क्या लगता है इस समय कैसे मिलेगा? क्या रणनीति उसको लेकर कांग्रेस की? देखो, मैंने आपको बताया कैसे नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव में हमारे 8 में से 5 जीते हैं, हमारे 6 लोग जिले में जीत करके आए हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। जी जी। तो युवाओं को लेकर किस तरह की सोच ललित रखते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नौजवान को लेकर के सोच रखते हैं कि नौजवान को रोजगार मिले। नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसका परिवार चलेगा, तो नौजवान आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। नीमराना में, भिवाड़ी में, बहरोड में जो भी औद्योगिक जोन हमारे यहाँ बने हुए हैं, जो
जापानीज जोन भी बने हुए हैं, उन सब में स्थानीय लोगों को, पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों को रोजगार मिले ताकि वो अपना परिवार चला सकें। इन सब बातों के बारे में ठीक। नौजवान के प्रति भी हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम चर्चाओं को साझा करने के लिए, बातों को साझा करने के लिए, और अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे लोकसभा उम्मीदवार अलवर से ललित यादव जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बातें साझा की, क्या विजन उनका अलवर को लेकर है और किस विजन के साथ कांग्रेस इस चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, चुनाव लड़ने वाली है, वो तमाम बातें हमारे साथ साझा की। तो कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आ चुकी है, 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और खास बात यही है कि SC ST और OBC को साध कर उसको फोकस में रखकर इस सूची को जारी किया गया है। कितना फायदा इसका मिलेगा ये आगामी चुनाव बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस सूची के अंदर 10 नाम राजस्थान के शामिल है। आपको बता दें कि बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह और उचियरड़ा, जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा, चित्तौड़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है और चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहीं ललित यादव जो कि लोकसभा उम्मीदवार है अलवर से, उनका कहना है कि युवाओं को सामने रखकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। युवाओं की सोच को, उन्नति को, विकास को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। चर्चा की जाएगी, जनता के बीच में जाया जाएगा और क्या कुछ कमियां राज्य सरकार की है, क्या कुछ कमियां केंद्र सरकार की हैं, वो उजागर की जाएगी। तो इस चुनाव का जो रण है वो महारण बनने वाला है, महासंग्राम बनने वाला है। दोनों पार्टियां और तमाम पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में एक के बाद अब एक लिस्टें जारी कर रही हैं, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है, 10 नाम राजस्थान के शामिल हैं, 43 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर आज KC वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता में किया है। तो 43 नामों की दूसरी सूची इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। AICC के अंदर प्रेस वार्ता हुई, KC वेणुगोपाल, अजय माकन, तमाम बड़े नेता इस प्रेस वार्ता में शामिल थे। 43 नामों को घोषित किया गया, 10 नाम राजस्थान के इसमें शामिल हैं। तो जहां एक कठिन डगर कांग्रेस के सामने जिस तरह से जो परिवार है वो बिखर रहा है, उसको लेकर तमाम नेताओं का और जो उम्मीदवारों से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि इस परिवार को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा जाएगा। भरतपुर से चाहे संजना जाटव हो या फिर अलवर से ललित यादव हो, दोनों से बातचीत हमने की और उनके विचार जो उन्होंने साझा किए वो आपको सुनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक है और एकता के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। विकास का मुद्दा होगा, क्या कुछ कमियां राज्य सरकार की है, क्या कुछ वादे केंद्र सरकार ने किए थे जो कि पूरे नहीं किए गए, उन सभी को आधार बनाकर इस चुनाव की रणनीति को तैयार किया गया है। और आगे तमाम नेता, तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता राजस्थान के इस चुनावी महारण में, लोकसभा के चुनावी महारण में उतरेंगे और जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो झुंझुनू से बृजेंद्र ओला को टिकट मिला है, कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता है। आपको बता दें जालौर सिरोही से वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। जोधपुर से करण सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में, गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो एक अलग रणनीति के साथ और महारणनीति के साथ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सबके सामने है। 10 उम्मीदवार हैं और 43 नाम, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए 43 नामों की घोषणा इस दूसरी सूची के माध्यम से की गई है। ये वही नाम है जिनका आकलन पहले से ही लगाया जा चुका था। सियासी गलियारों में चर्चा इन तमाम नामों की चल रही थी। गोविंद राम मेघवाल हो चाहे वैभव गहलोत हो, तमाम वही नाम देखने को मिल रहे हैं दूसरी सूची के अंदर। बीकानेर से गोविंद मेघवाल
को चुनावी मैदान में यहाँ कांग्रेस ने उतारा है। चूरू से राहुल कसवा, जो कि हाल ही में कांग्रेस का जिन्होंने दामन थामा, हाथ का साथ देने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए और उनको भी टिकट मिल गया। चूरू से राहुल कसवा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी मेघा कौशिक। मेघा, दूसरी सूची का इंतजार खत्म हो गया है, 43 नामों की घोषणा हुई है और राजस्थान की खास तौर पर बात करें अगर तो 10 नामों की घोषणा की गई है। 10 नाम वो जो कि SC ST और OBC से आते हैं, युवा वर्ग के नेता हैं। किस तरह से इस सूची को देखती हैं और इस रणनीति से आप क्या समझती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सूची पे ही सौरभ बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सूची नहीं कह सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे छोटी छोटी जो सूची है वो कांग्रेस जारी कर रही है। इससे पहले एक सूची जारी की थी, उसमें राजस्थान का नाम नहीं था और एक जाहिर सी बात है क्योंकि जब पहले CEC की बैठक हुई उस बैठक में राजस्थान का जिक्र नहीं हुआ था। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ था, जैसे नागौर की सीट के लिए कहा जा रहा था, हालांकि इस सीट में इसमें भी कोई नागौर का नाम नहीं है, लेकिन RLP से गठबंधन होगा या नहीं होगा, और कौन सी सीट पर उतारा जा सकता है, क्या वो मांगा जा रहा है, आदिवासी सीट जो है क्या आदिवासी BAP पार्टी जो बाप पार्टी है क्या उससे गठबंधन हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा की जा रही थी और इसलिए कुछ सीटों पर जो चर्चा है वो बनी रही। इनमें अगर आप 10 सीटें देखेंगे, अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर शायद ऊपर नीचे बातचीत चल रही होगी और अगली लिस्ट जो है आने वाले 3-4 दिन में फिर आपको नजर आ जाएगी। बीजेपी की लिस्ट भी बता दूं आपको कि हो सकता है आज देर रात तक बीजेपी की लिस्ट भी CEC की बैठक क्योंकि कल हो गई तो वो भी जारी कर दे। अब बात कर लेते हैं अभी जो लिस्ट आई है उसकी। राजस्थान की अगर बात करें, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, देखिए ये नाम चर्चाओं में चल रहा था, ये नाम चल रहा था कि भाई बीकानेर से किसको उतारा जाए। 1-2 नाम और थे जो पहले भी चर्चाओं में थे कि भाई इनको भी उतारा जा सकता है, लेकिन आखिर में गोविंद राम मेघवाल पर चर्चा बनी क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जैसे PCC अध्यक्ष यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा जाते हैं, प्रभारी जाते हैं बीकानेर, तो वहां पर ये चर्चा होती है कि भाई अब जो हुआ विधानसभा में सो हो गया, लेकिन अब क्या होना चाहिए इस पर चर्चा हो, हमें और बेहतर काम करना होगा। तब गोविंद राम मेघवाल ही थे जो कहते हैं कि भाई हम तो काम करने को तैयार हैं, पार्टी मौका दे। तो क्या वहां से संकेत शुरू हो गए थे? ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि क्या इन लोगों को उतारा जाएगा, क्या ये नाम सामने आएंगे। गोविंद राम पे मोहर लग गई है क्योंकि अगर उनके सामने की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल उनके सामने है, केंद्रीय मंत्री अभी हैं, बड़ा चेहरा है और दोनों ही आपस मेघवाल जो है इसीलिए दोनों में एक टक्कर भी रहती है हमेशा से, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल वहां पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और बहुत सारा उन्होंने काम भी करवाया है। दूसरा नाम बात कर लेते हैं चूरू से राहुल कसवा। सबसे ज्यादा अगर कोई नाम इस वक्त सुर्खियों में है तो वो है राहुल कसवा का नाम। वो इसलिए है क्योंकि राहुल कसवा वो व्यक्ति हैं जो कल ही कांग्रेस में आए और आज उनको टिकट मिल गई। एक अमूमन बात होती है कि भाई क्या अगर पार्टी चेंज की है तो टिकट के लिए की होगी, जैसे महेंद्रजीत मालवीय के लिए हुआ था कि महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो क्या दबाव है उन पे, क्या कुछ है, ऐसी तमाम चीजें थी। और फिर हुआ कि क्या लोकसभा सीट उनको लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा, और हुआ भी यही, उनका नाम पहले लिस्ट में शामिल हो गया, आ गया। और अब ऐसे ही राहुल कसवा है। राहुल कसवा आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले जब उनका टिकट चूरू से कटा था तो कैसे उन्होंने एक्स पे शेयर किया था कि आखिर मेरा क्या कसूर है, क्यों मेरा टिकट काटा गया है। एक जो चीज, एक शब्द जिसका जिक्र मीडिया में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा था और वो था जयचंद नाम, जिसका जिक्र कर रहे थे राहुल कसवा। जब हाल ही में उन्होंने एक सभा की थी और तमाम उनके जो समर्थक थे वो वहां पर पहुंचे थे, एक सरपंच जो थे वो कांग्रेस से थे, वो भी वहां पे पहुंचे थे और वो वहां पर कहते हैं कि भाई आपका स्वागत है, आप आइए। और तब से ये संकेत मिलना शुरू हो गए थे। खुद राहुल कसवा ने उस दिन कहा था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए सोचने का और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये तो तय है कि चुनाव लड़ना है। और हुआ भी ऐसा ही, 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया। सामने आया तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, कितने सारे नाम ऐसे थे, बड़े बड़े गद्दावर नेता लालचंद कटारिया और बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि बीजेपी में शामिल हुई। किसी के लिए कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही राहुल कसवा जाते हैं कांग्रेस में और ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए देखिए क्योंकि ये एक पहले, अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊं, विधानसभा चुनाव हुआ,
उसके बाद जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि जयचंदू से सावधान रहिएगा। फिर उसके बाद राहुल कसवा जो हैं उनका टिकट कट जाता है जब पहली लिस्ट आती है और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिल जाता है, तब उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं कि मेरा क्या कसूर था, मैंने सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, मैंने सब कुछ किया जो पार्टी में एक नेता को करना चाहिए या फिर कार्यकर्ता को करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि कसवा कोई खुद एक नहीं कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़े हों, आगे बढ़े हों। उनको आप उनका परिवार देखेंगे, कसवा परिवार बरसों से इस राजनीति में है और वो बरसों से बीजेपी में सेवा करता आया है, कार्य करता आया है, कद्दावर स्थिति में रहे भी हैं। और ऐसा ही कसवा का भी रहा। राहुल कसवा जो हैं वो भी कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, उनका वहां पर दमखम भी नजर आता है। लेकिन अब उसके बाद जब वो कल शामिल हुए थे कांग्रेस में, उस दौरान उन्होंने कहा भी था कि सामंतवादी सोच हो गई है, किसानों की विरुद्ध हो गई है, और ऐसे तमाम शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था और उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो 2 दिन का वक्त, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा था, वो 2 दिन का वक्त मांगा गया था कि आखिर क्या बीजेपी से, आला कमान से, हाईकमान से मनाया जाएगा या फिर जो राहुल कसवा हैं उनको वो कांग्रेस में चले जाएं। और शायद जैसे लालचंद कटारिया और तमाम लोग जब बीजेपी में शामिल हुए तो ये तय हो गया कि भाई अब राहुल कसवा को एक मैसेज गया होगा या नहीं, ये कह नहीं सकते हैं कि उनकी बात हुई नहीं हुई, लेकिन ये साफ हो गया कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस में आए और चूरू से एक कद्दावर नेता है तो जाहिर सी बात है उनको टिकट मिलना था। इसके बाद बात कर लेते हैं अलवर की, बात कर ले ललित यादव। ललित यादव एक यंग चेहरा है। देखिए, पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि वो यंग, महिलाएं, युवा, इन सबको खड़ा करे, जिससे कि एक उतारा जाता है, बड़े नेताओं को उतार दिया जाता है, यंग जो है ब्रिगेड उसको नहीं आगे बढ़ाया जाता, जिसका सचिन पायलट भी जिक्र करते रहे हैं कि इस बार हम युवाओं को उतारेंगे। इस बार ललित यादव को उतारा है। ललित यादव विधानसभा में अच्छे, उन्होंने कह सकते हैं अच्छे वोट हासिल किए थे और एक यंग है। अलवर की राजनीति, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, वहां पे बहुत सारा काम होना है। अलवर की राजनीति अगर आप देखेंगे, यादव वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। भूपेंद्र यादव को वहां से उतारा गया है। यूं तो राजस्थान से भूपेंद्र यादव आते हैं, लेकिन वो देश भर में अच्छी उनकी राजनीति रही है। अब भूपेंद्र यादव को यहाँ से खड़ा किया गया है। एक वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, मजबूत नेता है। ललित यादव वहीं उनके सामने एक यंग नेता है, एक युवा नेता है। अब क्या वो ललित यादव भूपेंद्र यादव को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि पहले से ही अगर आप देखेंगे वहां पे, जैसे बाबा कहा जाता है शब्द को, वो पहले से ही वहां पे थे, पिछली बार सांसद रहे थे, तो वो उनकी पकड़ अच्छी मजबूत है। 2014-2019 का जिक्र मैंने नहीं किया, 2014 हो 19 हो, ये वो दोनों लोकसभा चुनाव हैं जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कोई भी सीट 25 में से नहीं आई थी, यानी 0 उसको मिला था। कई ऐसी सीटें थी जिसमें 2 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर रहा था। ये अलवर सीट भी। भरतपुर की बात कर लेते हैं, एससी सीट है। यहाँ का जो चुनाव होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव रहता है। भरतपुर की अगर बात करें, संजना जाटव को यहाँ से खड़ा किया गया है। संजना जाटव जैसा ललित यादव हैं, वो यंग हैं, इसी तरह संजना जाटव भी हैं। संजना जाटव महिला, आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि महिला प्रत्याशी को उतारा है। संजना जाटव वो चेहरा है जो प्रियंका गांधी की नज़रों में तब आई जब वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान वो उनकी नज़रों में आई, उनके करीब भी रही, और जिस तरह से उनका काम रहा प्रियंका गांधी को भी वो पसंद आया। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव वो लड़ती हैं और कमाल की बात देखिए कि बहुत ज़्यादा अंतर से वो हारती नहीं है। 400 के करीब शायद लगभग वो अंतर रहा होगा संजना जाटव का, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और कह सकते हैं कड़ी चुनौती उन्होंने दी। शायद इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और संजना जाटव को उतारा है। यहाँ की ये राजनीति बिल्कुल मेगा बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार चर्चा आपसे जारी रहेगी। फिलहाल ये लिस्ट दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 43 नाम है, 10 नाम इसमें से राजस्थान के शामिल है। दूसरी लिस्ट में राजस्थान के उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मौका दिया है। SC ST OBC उनको फोकस में रखकर ये लिस्ट जारी की गई है। कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें, झालावाड़ 12 से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। गोविंद मेघवाल जो कि बीकानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं।
अलवर की बात करें, ललित यादव को टिकट दिया गया है। तो भरतपुर की हम बात कर रहे थे, मेघा और संजना जाटव को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि दबदबा जो है यहाँ पर राज परिवार का रहा। अगर इतिहास की बात की जाए लोकसभा सीट की, तो जो दबदबा रहा वो राज परिवार का रहा। अब संजना जाटव मैदान में उतरी है कांग्रेस से, किस तरह से देखती हैं, कैसे साथ पाएंगी वो इस चुनाव? बिल्कुल सौरभ, जो हम बात कर रहे थे चुनाव को साधने की, जैसे जाटव राजनीति, कोहली राजनीति, यहाँ पर एससी, क्योंकि यहाँ ये सीट है तो ऐसे यहाँ पर उन्हीं लोगों को उतारा भी जाता है। और संजना जाटव जो है वो एक कांग्रेस की नज़र में तब आई जब उन्होंने अच्छा खासा जो अंतर था उसको कम किया, यानी कम अंतर से वो हारी थी। तो ये एक अच्छी बात रही। युवा वो है, महिला वो है, प्रियंका गांधी के करीब रही जब उन्होंने, जैसा मैंने अभी बताया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के समय में काम किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो शायद पार्टी ने देखी होंगी। अब एक और सीट का जिक्र कर लेते हैं, वो है टॉक सवाई माधोपुर हरीश चंद्र मीणा की। पहले वो भाजपा में थे, उसके बाद कांग्रेस में चले जाते हैं। ये भाजपा का टाइम मैं आपको वो बता रही हूँ जब किरोड़ी लाल मीणा जो थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस वक्त का टाइम था।